Hello everyone. So we are going to talk about CSAT previous year questions, and this is part two. In our logical reasoning section, we have already covered one part that is already available in YouTube. So, and this is part two of LR 2024. So, what we are going to do, we are going to discuss questions of 2024 actual exam questions. Okay, so let's start what questions we have gotten last year. So basically this question says calendar for the year 2025 is same for which coming year. So we know that if I'm talking about 1st Jan of 2025 is, I'm assuming a random day, that is let's call it 2025, and I'm assuming it is randomly Monday, right? So any year that starts with Monday is going to have same calendar, right? So we already know that 1 year is equal to 365 days. So 365 days means what? 52 weeks plus one additional day we get. One leap year. On the other hand, if I'm talking about one leap year, that has 52 weeks or 366 days, 52 weeks plus two additional days, right? So if I am looking for any set of 4 consecutive years, 4 लगातार अगर अपन ईयर्स की बात करेंगे तो 4 ईयर्स में 3 नॉर्मल ईयर होंगे और एक लीप ईयर होगा. सो हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज वी आर गोइंग टू गेट? वी आर गोइंग टू गेट 3 days, 3 नॉर्मल ईयर्स के प्लस 2 days लीप ईयर के. सो ओवरऑल वी आर गोइंग टू गेट 5 extra days. Okay. So from 1st Jan 2025 to 1st Jan 2029, 4 साल बाद, how many days extra I'm going to get? I'm going to get 5 extra days, right? So जब भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज जो होते हैं वो 7 या 7 का मल्टीपल बन जाते हैं तो हमारे पास सेम डे आ जाता है. सो 1 Jan 2030 अगर मैं बात करूं, so from 29 to 2030 we are going to get one additional day, so total number of extra days are going to be 6. Okay, 2030 to 2031 I am going to get one more extra day, that is 7 days. So after 7 days I am going to have same day. So 1 January 2031 is going to be Monday. So अगर 1 जनवरी सेम है दोनों दोनों साल का, तो इसका मतलब जो पूरे साल का कैलेंडर होगा वो डेफिनेटली सेम होगा. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, दैट इज 2031. Okay, now let's look at the next question. What does it say? What is the angle between minute hand and hour hand when clock shows 4:25? Okay, so basically what is the approach? So whenever question talks about angle at HM, मतलब कुछ बजकर कुछ मिनट पे एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड पूछता है, तो उसके लिए वी हैव अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, थीटा, दैट इज एंगल, दैट इज गिवन टू अस एज 30h प्लस माइनस 11/2 m. ठीक है. सो 425 की बात कर रहे हैं, मतलब जो h है वो 4 है, मतलब 30 into 4 comes out to be 120 minus 11/2 into m. M is what? 25. So 25. So we are going to have what? That is going to be 120 minus this is going to be 275 divided by 2, मतलब 137.5. ठीक है. So my angle comes out to be minus 17.5. So angle between both the hands is going to be 17.5. Now what is the significance of negative sign? Negative sign का मतलब ये होता है कि पहले मिनट हैंड आर हैंड पे ओवरलैप किया और उसके बाद वो 17.5 डिग्री आगे निकल गया, मतलब मिनट हैंड आवर हैंड से आगे जा चुका है. अगर पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब ये होता है कि ओवरलैप करने के पहले का टाइम है. सो अब एनी हाउ साइन से बहुत फर्क नहीं पड़ता, सीधे मतलब वो इतना बताता है कि वो ओवरलैप करके आगे जा चुका है, दैट्स नेगेटिव साइन. पॉजिटिव साइन मींस अभी ओवरलैप नहीं किया है लेकिन एंगल बिटवीन हेड्स इज स्टिल गोइंग टू बी 17.5 डिग्रीज. ओके, now let's move on to the next question. What does it says? So it says what is the sum of first 28 terms of the following sequence? Okay, so basically what is my series? So if I look at this series, so it says 1, then what is it 1 2, then what is it 1 3 2, okay, then what is it 1 4 3 2, then what is it 1 5 4 3 2. So in the first term we have only one number, sum is 1.
in the second sequence, how many numbers we have? Two numbers. So we have one number, we have two numbers, we have three numbers, we have four numbers, we have five numbers. So second का सम कितना आ रहा है? 3. थर्ड का सम कितना आ रहा है? 6. इसका सम कितना आ रहा है? 10. सो बेसिकली आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड द नेक्स्ट नंबर. सो अगले का सम कितना आएगा? दिस यहाँ इस सीक्वेंस में 5 ऐड हो गया, तो इसका सम सीधे आएगा 15. सो अभी तक हमारे पास टोटल 15 नंबर हो चुके हैं, राइट? सो वी आर ऑलरेडी डन बाय 15 numbers. Then next sum is going to be of 6 numbers. That is going to be 1, 6, 5, 4, 3, 2. So that is going to be 15 plus 6, that's 21. So अभी तक 21 नंबर्स हो चुके हैं, और अगला जो इसका सीक्वेंस बनेगा उसमें 7 नंबर होंगे. दैट इज 1, 7, 5, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2. सो ये अपना जो है पैटर्न बन रहा है. दैट इज 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2. सो अब इसका सम क्या होगा? 21 plus 7, दैट इज 28. सो ये जो है ये अपना ओवरऑल सम आ रहा है. अब ये जो सम की वैल्यू होगी वो 28 नंबर्स का सम होगा, क्योंकि फर्स्ट सीक्वेंस में 1 नंबर है, नेक्स्ट सीक्वेंस में 2, अगले सीक्वेंस में 3, अगले सीक्वेंस में 4, अगले सीक्वेंस में 5. तो ऐसे टोटल उसके अगले सीक्वेंस में 6 होंगे, उसके अगले सीक्वेंस में 7 नंबर होंगे. सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर गोइंग टू बी 28, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू माय टोटल सम. ठीक है. So 1 plus 3, 4, 4 plus 6, 10, 10 plus 10, 20, 20 plus 15 is going to be 20, 35, 35 plus 21 is going to be 35 plus 21 is going to be 56, 56 plus 28 is going to be 84. So answer of this question comes out to be option B, that is 84, and that's how we can calculate. Okay. So make a pattern, get the series and get the answer. So whenever you are going to get these kind of questions, इसका मतलब तुम्हें पैटर्न क्रिएट करना है. on that pattern you have to solve the question. क्योंकि इस टाइप के जब भी 28 टर्म्स का सम होगा, या 30 टर्म्स का सम होगा, या 40 टर्म्स का सम होगा, तो क्वेश्चन कभी भी रैंडम नहीं होगा. क्वेश्चन में हमेशा एक पैटर्न बन रहा होगा. योर जॉब इज टू लुक फॉर द पैटर्न एंड गेट द आंसर वेरी इजीली. Okay, now let's look at the next question. What does it say? It says that एक आदमी है, वो कितना है, 100 मीटर अपने घर से चला, फिर then he turns left and walks 100 meter, again turns left and walks 300 meters, then turns right and walks 100 meter to reach his office. अब वो उसने इनिशियली किस डायरेक्शन में चला कि अगर उसका जो ऑफिस है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है. ठीक है. सो इसका मतलब ये है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टार्टिंग डायरेक्शन अज्यूम कर सकते हैं, कोई भी अज्यूम कर सकते हैं. इफ यू वांट वी कैन अज्यूम नॉर्थ, वी कैन अज्यूम वेस्ट, वी कैन अज्यूम साउथ, वी कैन अज्यूम एनी डायरेक्शन. सो आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट माय इनिशियल डायरेक्शन इज नॉर्थ. उसने नॉर्थ में चलना शुरू किया इनिशियली. ठीक है. तो वो इनिशियली 100 मीटर नॉर्थ से चला. सो 100 मीटर जा रहा है नॉर्थ पे. ठीक है. एंड वाई आई एम नॉट टेकिंग वेस्ट और साउथ, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में आई एम गोइंग टू टेक नॉर्थ, और उससे आई विल एक्सप्लेन कि अगर मेरा गलत अजम्पशन भी है तो उसको मैं सही कैसे करूंगा इवेंचुअली. सो बेसिकली 100 मीटर नॉर्थ में चला, देन ही टर्न्स हिज लेफ्ट. लेफ्ट का मतलब इस डायरेक्शन में गया, और कितना चला? 100 मीटर्स अगेन. देन ही अगेन टर्न्स 300 मीटर. सो 300 मीटर का मतलब होगा 100 मीटर यहाँ एंड 200 मीटर्स यहाँ. मतलब वो यहाँ पे पहुंचा 300 मीटर्स टोटल कवर करके. दिस इज 100 एंड दिस इज 200. ओके. देन यहाँ पे गया, और यहाँ से आफ्टर दिस ही इज टेकिंग अ राइट एंड ट्रैवलिंग 100 मीटर्स. सो बेसिकली ही इज गोइंग 100 मीटर्स एंड दिस इज हिज ऑफिस. सो बेसिकली दिस इज हिज ऑफिस पॉइंट. ठीक है. स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ऑफिस पॉइंट ये है, एंड सो बेसिकली हिज ऑफिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट. दैट्स व्हाट वी नो. ओके. सो डायरेक्शन इज साउथ वेस्ट, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ही इज गोइंग विद हिज ऑफिस इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होगी वो कुछ यहाँ पे होगी, मतलब उसका ऑफिस यहाँ पे होना चाहिए, राइट? मेरे एक्सपेक्टेशन के एकदम अपोजिट 180 डिग्रीज में. इसका मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो भी मेरे एक्सपेक्टेशन से एग्जैक्टली अपोजिट 180 डिग्री होना चाहिए. इसका मतलब उसने नॉर्थ से शुरू नहीं किया होगा, उसने किस डायरेक्शन से शुरू किया होगा? साउथ से. सो इसका मतलब आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी. इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट विद वेस्ट
देन अकॉर्डिंगली यू कैन रोटेट। अगर आप चाहें तो साउथ से शुरू करेंगे, अगर साउथ से शुरू करेंगे तो सीधे नॉर्थ ईस्ट ही आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। लेकिन अगर आप वेस्ट से भी शुरू करते हैं तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा इशू नहीं आएगा। रोटेट अकॉर्डिंगली, अज्यूम इनिशियल डायरेक्शन and check what is the direction you are getting, and accordingly you can just rotate the direction and get the answer। तो यहाँ पे सिंपली इसको रोटेट करके 180 डिग्री रोटेट कर दिया। 180 डिग्री रोटेट करने का रीजन ये है कि मैंने नॉर्थ से शुरू करके साउथ वेस्ट पे पहुंचा हूँ, बट द क्वेश्चन सेज इंस्टेड ऑफ साउथ वेस्ट दैट एक्चुअल डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट, मतलब इसका एकदम अपोजिट 180 डिग्रीज। मतलब इनिशियल जो भी अरेंजमेंट है वो कंप्लीटली आपका अरेंजमेंट फ्लिप हो जाएगा 180 डिग्री से, एंड दैट्स इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज इट सेज? एक आदमी जो है वो 100 मीटर वेस्ट पे जा रहा है, ठीक है। सो 100 मीटर वेस्ट वर्ड जा रहा है, मतलब जब भी अपना क्वेश्चन आएगा तो हमेशा यही करना है, दिस इज गोइंग टू बी योर नॉर्थ, दिस इज गोइंग टू बी योर साउथ, दिस इज गोइंग टू बी योर ईस्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी योर वेस्ट। तो आदमी जो जा रहा है वो इनिशियली 100 मीटर वेस्ट में जा रहा है, सो दिस इज 100 मीटर्स, ठीक है। उसने लेफ्ट टर्न लिया और 100 मीटर गया, तो लेफ्ट टर्न का मतलब इस डायरेक्शन में गया और कितना चला 100 मीटर्स। उसके बाद उसने 225 मीटर टर्न लिया, अभी वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? सो 225 मतलब यहाँ पे है, यहाँ से 180 डिग्रीज का अनक्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा था, तो 180 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज, मतलब अभी वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। And what is going to be this direction? This direction is going to be northeast. So in which direction he is moving? He is moving to the direction of northeast. मतलब यहाँ से 180 डिग्री टर्न लिया प्लस 45 डिग्री आ गया, मतलब दिस टोटल एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 225 डिग्रीज, एंड दैट्स व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग कि अभी वो किस डायरेक्शन में वॉक कर रहा होगा। सो ही विल बी मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है। Okay, now let's move on to the next question. What does it says? It says a plus b means a minus b, a minus b means a into b, and a into b means a divided by b, a divided by b means a plus b, and question में function की value पूछी हुई है, ठीक है। So what I'm going to do, I'm going to write everything simultaneously as it is। 10 प्लस का मतलब है यहाँ पे माइनस, सो 10 माइनस 30, ठीक है। माइनस का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, सो 30 इंटू 100, ओके। इन मल्टीप्लीकेशन का मतलब है डिवीजन, सो 100 डिवाइड बाय 50, ओके। देन डिवीजन का मतलब ये है कि प्लस, सो प्लस 25। ये मेरा एक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें मैंने सारी वैल्यूज अकॉर्डिंगली चेंज कर दी। सो अगर बॉड मास का रूल देखें, सो बॉड मास के रूल में सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सॉल्व होगा और उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा। सो 10 प्लस 25 कम्स आउट टू बी 35, ठीक है। 100 divided by 50 is what? 2, and 30 into 2 comes out to be 60. So 35 minus 60 will give me a value of minus 25, और सीधे सीधे अपना आंसर ऐसे आ जाएगा कि बेसिकली जो भी आप साइन चेंज करेंगे उसके बाद अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन हमेशा अपनी बात करता है कि बॉड मास हमेशा फॉलो होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू बॉड मास सबसे पहले जो साइन सॉल्व होंगे वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हैं, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन फॉलो होंगे। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड with this we conclude this session. If anyone has any doubt can definitely drop a message, we'll be happy to respond. Thank you.